I'll be talking about what is actually alternating and the graphs. Okay, so you might already remember the expression of induced EMF. So that was induced equals to E naught sin omega t. I'm not taking the general case as in the last video, which was E naught sin omega t plus phi. I'm not taking that general case. I'm taking the simple case. Okay, E naught sin omega t. So we'll start with the graph part and then we'll discuss कि सर यहाँ पे alternating है क्या. ठीक है, आप जब बोलते हो alternating EMF, what exactly is alternating? ठीक है, तो ग्राफ लेते हैं. So we are drawing a graph of induced EMF versus time. Now I hope आप सबको साइन का ग्राफ पता होगा. ठीक है, दैट इज अ प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट. अगर आपको साइन ग्राफ नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू इट, बेसिक मैथ्स. सो द साइन ग्राफ लुक्स समवॉट लाइक दिस. In this case, there will be an amplitude of E naught. So the graph will oscillate between E naught and minus E naught, right? कुछ चीजें हाईलाइट कर दे. ग्राफ पीरियोडिक है. The graph repeats after this point, the red dot. Okay, यही वो टाइम इंस्टेंट है after the graph repeats itself. हमने बोला था the minimum time after which graph repeats is called the time period. So this point on the time axis is capital T. And 2 pi upon time period करोगे तो क्या मिलेगा? Angular frequency of the graph of the sinusoid. Got it? And this point will be, in terms of time, it will be T by 2. ठीक है. As I move on with the slides, ना कुछ terms change करते रहेंगे, तो आप pause करके running notes लेते रहना. ठीक है, if you can. Now moving on. So this is a sinusoidal graph of EMF versus time. Now ये जो EMF है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. ये EMF प्रेजेंट कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट अराउंड द एंटायर लूप, राइट? यू रिकॉल कि इंड्यूस्ड EMF ये पूरे लूप में फैला रहता है. अनलाइक बैटरी EMF लोकलाइज्ड होता है, इंड्यूस्ड EMF डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो इन जनरल आप डिटेल्स में बात कर सकते हो कि सर इस ब्रांच में EMF है कि नहीं, इस ब्रांच में कितना है, बट इन जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. नाउ ये तो जनरेटर में हो रहा है. नाउ दिस जनरेटर हैज अ जनरेटर कॉइल हैज एन एक्सिस, इसके अबाउट ये रोटेशन कर रहा है. अब यहां पे बात कर दे कि सर कॉइल के कुछ टर्मिनल्स होंगे. ये जो भी कॉइल है एक्स एंड वाई, देयर इज एन एंटायर जनरेटर सेटअप. एक जनरेटर प्रैक्टिकली जब लेते हो तो वहां पे स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, बहुत कुछ होता है. एंड देन वी हैव एन एक्सटर्नल डिवाइस. ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जनरेटर. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सर यहाँ पे कुछ स्लिप रिंग्स होते हैं, फिर कार्बन ब्रशेस होते हैं और फिर कोई डिवाइस होता है. ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एंटायर लाइक इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैप्शन, दैट इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल. ठीक है, बट हाँ हमको ये समझना है कि जनरेटर कॉइल के 2 टर्मिनल्स होंगे और उनके अक्रॉस हमारा डिवाइस कनेक्ट होगा. सो आपके घर में एक सॉकेट है, लेट्स से AC सप्लाई. क्लास 10 में you might have studied some part regarding it. So ground, earth, then live and neutral पढ़े होगे. You might have sockets like this or like this, right? ऐसे होंगे sockets जिसमें हम लोग plug in करते हैं. We plug in our devices in these kind of sockets, right? So हमारी जो device है, suppose I'm plugging in my charger, my phone charger in this kind of a socket. मैंने plug in किया and I have a phone. So my phone, my entire wire and the phone setup, that is my load resistance or the load. सिर्फ resistance तो नहीं होता, but that is my external device. and मैं उसको connect कहाँ पे कर रहा हूँ? I'm connecting it across these 2 terminals actually. ठीक है, एक बार डिटेल्स में बोलूँ तो ये जो जनरेटर है, दिस रोटेटिंग जनरेटर कॉइल, ये कहीं पावर प्लांट में है. ठीक है, दूर away from my household in some power plant there is a generator. Okay, and it is supplying some EMF. That EMF is obtained across these 2 terminals. That EMF is actually equal to the potential difference across these 2 terminals. I can in fact write like this, that induced EMF will be del V across XY. ठीक है, तो ये जो del V XY है, ये as a consumer we are receiving it when we connect some resistance across it. अब रेजिस्टेंस की जगह हम लोग बहुत कुछ कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर में, बट दिस इज द इजीएस्ट केस टू डिस्कस. सो इमेजिन दैट आई एम कनेक्टिंग सम लोड रेजिस्टेंस और अ डिवाइस अक्रॉस दोस टर्मिनल्स. तो वंस आई कनेक्ट सम डिवाइस अक्रॉस एक्स एंड वाई, अब मुझे कुछ करंट मिलेगा. नाउ आई एम गेटिंग अ क्लोज सर्किट, सो दिस बिकम्स एन ईएमएफ सोर्स और मुझे करंट मिल रहा है. गॉट इट? मुझे करंट मिलेगा हमारे रेजिस्टेंस पे. क्लियर है? तो हमारे घर में जो सॉकेट होता है, सॉकेट एक्चुअली ये एक्स एंड वाई को डिनोट करता है. ठीक है,
दूर कहीं पे सॉकेट फिर बैकग्राउंड में कनेक्टेड है टू अ जनरेटर और हमारा डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हैव दिस फिजिकल आइडिया। ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे इतना सिंपल कनेक्शन नहीं होता। मतलब सम स्टूडेंट में थिंक कि सर एज द कॉइल रोटेट्स ये वायर तो ट्विस्ट हो जाएगा, नहीं, नथिंग लाइक दैट हैपेंस बिकॉज देयर आर स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस एंड एटसेट्रा। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। द थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर पोलैरिटीज। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे डिवाइस को अगर मैंने एक्स एंड वाई के अक्रॉस कनेक्ट किया है, मुझे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं आइदर लिख सकता हूं एज वी वाई माइनस वी एक्स और वी एक्स माइनस वी आई फॉर माई पर्पज, एज एन इफ आई हैव अ रेजिस्टेंस अक्रॉस इट, ठीक है, दिस इज माई डिवाइस और अ बल्ब, तो आई विल बी गेटिंग अ करंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, मे बी सो व्हेन आई टॉक इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ आई विल बी सेइंग सर वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल्स टू आई आर, राइट। तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिलहाल के लिए मैटर करता है। तो लेट्स से मुझे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, आई एम डिनोटिंग इट एज वी एक्स माइनस वी वाई, यू माइट थिंक ऑफ इट एज वी वाई माइनस वी एक्स, ठीक है। स्टिक टू एनी वन नोटेशन, ठीक है, ओके, होपफुली दिख रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं ग्राफ स्टडी करता हूं, ठीक है, ग्राफ का इनिशियल हाफ देखो एज इन 0 to t/2, लुक एट दैट पोर्शन, द साइनसॉइडल ग्राफ इज इन द पॉजिटिव हाफ, राइट, ग्राफ पॉजिटिव है। सो अगर मैं थोड़ी देर बाद ग्राफ के, लेट मी ड्रॉ दिस रीजन्स, ओके या, ठीक है, तो ये t/2 तक है, ठीक है, आई वाज जस्ट रीड्रॉइंग इट, ठीक है। तो फ्रॉम 0 to t/2 द ग्राफ वाज पॉजिटिव, ठीक है, जो ईएमएफ वैल्यू इज पॉजिटिव। भाई अगर ईएमएफ वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, विथ रेस्पेक्ट टू हुम, विथ रेस्पेक्ट टू द लोड रेजिस्टेंस। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे भले मैंने ड्रॉ नहीं किया है, माई लोड, माई डिवाइस इज इंपॉर्टेंट। हम जो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द डिवाइस, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल में एंड हम एज एन एक्सटर्नल एजेंट, एज एन एक्सटर्नल डिवाइस वो रिसीव कर रहे हैं। तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर मुझे एक पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो अगर वी एक्स माइनस वी वाई पॉजिटिव है, आई वुड राइट दैट वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई, राइट। तो मैं कह सकता हूं इन माई डायग्राम एक्स का जो टर्मिनल है ना, एक्स का जो पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव एंड वाई का पोटेंशियल नेगेटिव है। बात समझ में आई? मैं अगर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं और अगर कहता हूं वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई, तो मैं रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टर्मिनल टू वाई टर्मिनल। एक्स हाई पोटेंशियल पे है, वाई लो पोटेंशियल पे, तो मेरे रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ऐसा लग रहा है द करंट इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई। प्लीज कीप दिस इन माइंड, और इफ यू आर ड्रॉइंग प्लीज एड द रेजिस्टेंस इन योर डायग्राम। हाँ, एक अच्छा सा थोड़ा एक्सटेंड करके जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, कि इन दिस सिनेरियो, इन द फर्स्ट केस व्हेन द ग्राफ इज इन द पॉजिटिव हाफ, ठीक है, मेरा करंट अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द एक्स टर्मिनल टू द वाई टर्मिनल थ्रू द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ठीक। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर t/2, इन बिटवीन t/2 टू t, मेरा ग्राफ नेगेटिव हुआ। सो हाउ डू आई इंटरप्रेट दिस? अगर मेरा ग्राफ नेगेटिव हुआ तो Vx माइनस वी वुड बिकम नेगेटिव, ठीक ना, ईएमएफ नेगेटिव हो गया तो Vx माइनस वी इज नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या हो गया सर? Vx इज लेस देन Vy, तो पोलैरिटीज इंटरचेंज हो गए। मतलब आफ्टर सम टाइम इट अपीयर्स एज इफ x का पोलैरिटी नेगेटिव हो गया लेसर एंड y का पॉजिटिव। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रोटेटिंग कॉइल। एक्स एंड वाई के जो टर्मिनल्स हैं, दिस टर्मिनल्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय माय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उन टर्मिनल्स से फिक्स्ड है। रेजिस्टेंस को लग रहा है कि पोलैरिटीज इंटरचेंज हो रहे हैं। अब मैं जो रेजिस्टेंस की बात करूंगा, इफ आई ड्रॉ द रेजिस्टेंस वंस अगेन प्रॉपर्ली, ठीक है, अब मेरे रेजिस्टेंस को लग रहा है कि एक्स इज एट लोअर पोटेंशियल एंड वाई इज एट हायर पोटेंशियल। इस बार करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो, मतलब फ्रॉम वाई टू एक्स। सो नोटिस हाउ कंपेयर टू द प्रीवियस हाफ आवर करंट डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। तो कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में कंज्यूमर को लगता है कि अरे भाई करंट डायरेक्शन तो ऑल्टरनेट कर गया, करंट फ्लक्चुएट्स, द पोटेंशियल टर्मिनल्स दे ऑल्टरनेट इन पोलैरिटी, ठीक है। एंड देन अगेन जब नेक्स्ट हाफ आएगा, मतलब t से लेके नेक्स्ट t/2 मतलब 3t/2 तक, तब अगेन ग्राफ पॉजिटिव हो गया, ठीक, अगेन पॉजिटिव। इस बार क्या इंप्लाई करेगा? वंस अगेन दैट इस बार Vx minus Vy is positive, so Vx is greater than Vy. As a result, polarity इस बार क्या बोलोगे? X का पॉजिटिव, Y का नेगेटिव। तो इस बार जो रेजिस्टेंस है उसको वापस लग रहा है करंट इज मूविंग फ्रॉम
high potential to low potential, so from X to Y. So with respect to resistance, starting में the current was, एकदम starting मतलब इस half में, the current was from X to Y. In the second part, the current appeared to be from Y to X, and then again from X to Y, and so on. So the current is appearing to alternate in direction. The terminal potential difference received by my load, okay, that is appearing to alternate. So, and this is the reason we say that the EMF received by the load resistance is alternating in nature. This is the entire idea behind alternating EMF. Got it? So please understand what is alternating in this chapter. Okay, the current, the terminal potential difference, the EMF. And if the time period is huge, if the frequency huge, frequency let's say 50 hertz है, ठीक है, तो आपको इतना आइडिया होगा, the time period would be 1 by f, ठीक है, so that will be 1 by 50, pretty small. So 50 hertz implies it is making 50 rotations in unit time, okay, or it takes 1 by 50 second to make one rotation. So the rotation is pretty fast. So this entire alternating behavior is taking place very rapidly. ठीक है, so the polarities are alternating like anything, ठीक है, very fast. Okay, this is what happens in a practical life. Next I'll move on to another section. Next we'll compare the flux graph and the EMF graph, and we'll talk some things about it. Okay. So let's say this is my EMF graph, and इस बार मैं flux का expression लिखता हूँ. Flux, if you recall, that was NBA cos omega t. So the graph of flux would be a cosine graph. So let me quickly draw it. So the graph looks somewhat like this. We have the same intervals, right? Sine term and the cos term, notice they have the same omega. If they have the same omega, they have the same time period. So when this graph completes its half cycle, this graph will also complete its half cycle. When the sine graph completes one cycle, cos graph will also complete one cycle. So like graphs को इसीलिए मैंने ऊपर नीचे draw किया. I've drawn them one above the other, ठीक है, so that you can correlate. Now cos का graph again आपको probably पता होगा. Cosine value starts from 1, goes down to like 0 and then -1. So let me draw it. The cos graph will look something like this. Again, this will also be bounded between phi naught and minus phi naught, right? Phi naught being this, the coefficient of cos omega t. So notice now this thing. At t equals to 0, EMF is 0, but flux is maximum, right? And this is something I wanted to emphasize. At t equals to 0, EMF is 0, but the flux is maximum. Okay, so let's try to theoretically understand this. Okay, graph से ये obvious है, but please intuitively understand this. So let's say, consider कि at t equals to 0, ठीक है, मैंने कॉइल को देखना शुरू किया, कॉइल तो बिंदास रोटेट कर रहा था. That some time, not just at t equals 0, चलो किसी एक टाइम पे, ठीक ना, okay, t equals to 0 ही होगा, but it may be some other time as well. But किसी एक टाइम पे the coil was perpendicular, the coil surface was perpendicular to magnetic field. ठीक है, तो मैं ये सब पहले लिख लेता हूँ, then I'll show in the diagram. So let's say मेरे magnetic field lines look like this, these green ones. Okay, ये मेरे magnetic field lines है. The coil is perpendicular to the magnetic field line. In other words, the area vector is parallel to field line. ठीक है, parallel to the field vector. Now in this case, there is obviously some rotation. Rotation तो हो रहा है. इस केस में flux maximum होगा. ठीक है, क्योंकि almost all the field lines are passing through the area. The area is intercepting a large amount of field lines, so flux is maximum. This point on the graph. ग्राफ में ये पॉइंट, तो फ्लक्स मैक्सिमम, बट उसी टाइम पे EMF 0 है. तो उसका फिजिकल आइडिया लोग बहुत तरह से समझाते हैं. One of the ways to understand that EMF is 0 when flux is maximum is this. जब flux maximum होता है, field lines, most of the field lines are passing through the coil, but look at these branches, look at these arms. How are they moving? This branch has a velocity as shown by these vectors, these yellow vectors. इनका velocity इधर है, and the lower branch is moving like this. Okay, their velocity vectors are either parallel to magnetic field or anti-parallel, right? Okay, magnetic field के parallel है या anti-parallel है. Now in these two branches, if the branches are moving parallel momentarily the branches are moving parallel to magnetic field, ठीक है, इससे होता क्या है ना, हम लोग कहते हैं कि induced EMF, motional EMF का एक एक्सप्रेशन था, if you recall, a vector expression, okay, V crossed with B dot with DL.
इफ एनीबडी रिकॉल्स मोशन ईएमएफ में ऐसे एक्सप्रेशन था. सो द मैथमेटिकल लाइन ऑफ रीजनिंग इज दिस, इफ वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल, द क्रॉस प्रोडक्ट बिकम जीरो, राइट. क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो कोई ईएमएफ नहीं मिलेगा. तो दैट इज अ मैथमेटिकल रीजन कि इन ब्रांचेस में कोई ईएमएफ है ही नहीं. सेम तरह से जरा आप सोचिएगा, आप लोग सोचना इन ब्रांचेस के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है. ओके, नेट ईएमएफ इस कॉइल में एक्चुअली इसीलिए मेजरली जीरो हो जाता है. इनफैक्ट एक आइडिया कहते हैं, you might find this in many books, many authors prefer to talk like this, that if a branch, if a wire is cutting across field lines, if you have multiple field lines and if a wire is cutting across those field lines, उनको काट के निकल जा रहा है, ठीक है, then we get an EMF. But if a wire is just moving parallel to field lines, not cutting across them, ठीक है, then there won't be an EMF. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो मेटेलिक रेल का प्रॉब्लम करते हैं हम लोग ईएमएफ के चैप्टर में, वहां पे होता क्या है, द मेटेलिक रेल इज मूविंग, द मेटेलिक रॉड इज मूविंग एंड देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है, उनको कट करके निकल रहा है, ठीक है, स्लाइसिंग अगेंस्ट देम, राइट. इन दिस केस वी गेट एन ईएमएफ. बट इफ द रॉड मूव्स पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, नॉट स्लाइसिंग देम, देन वी डोंट गेट एन ईएमएफ. ओके, तो दिस इज अनदर थियोरेटिकल आइडिया दैट मेनी ऑथर्स ऑफन प्रेफर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ. तो ये चीज होता है इस सिनेरियो में t = 0 पे. एंड फर्दर थोड़ी देर बाद, तो मैंने यहां पे लिख दिया कॉइल आर्म्स मूव पैरेलल टू फील्ड लाइंस. थोड़ी देर बाद लेट्स से द कॉइल चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन एंड नाउ द कॉइल सरफेस बिकम्स पैरेलल टू फील्ड लाइन. कॉइल सरफेस बिकम्स पैरेलल, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है भाई, सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0. इनफैक्ट फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन फील्ड लाइंस आर कटिंग थ्रू द एरिया. यहां पे फील्ड लाइंस आर जस्ट ग्रेजिंग द सरफेस, दे आर नॉट कटिंग थ्रू द सरफेस एरिया. एक साइड से कट करके दूसरे साइड से नहीं एग्जिट कर रहे हैं. सो इन दिस केस फ्लक्स इज इंट्यूटिवली 0. ओके, नो फील्ड लाइंस आर कटिंग थ्रू द सरफेस, सो फ्लक्स इज 0 इन दिस केस. सो वो ये वाला केस हो गया, दिस पॉइंट इन टाइम. लुक एट दिस. ओके, बाई लाइक साइन कॉस आइडिया, दिस पॉइंट विल बी t/4. ठीक है, ये t/2 था, ये t/4. तो कॉइल जब रोटेट किया बाई सम टाइम, तो फ्लक्स बिकम 0. बट उस टाइम पे ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम. So you have this nice relation. Flux becomes 0 at a later time, but at that instant, the induced EMF is maximum. अब यहां पे maximum क्यों है? Theoretically, look at the side branches once again. Their velocity vectors are perpendicular to the field lines. तो मैं जो वो बात कह रहा था ना, slicing वाला, the velocity vector is perpendicular to field line. तो mathematically V cross with B इस बार कुछ ना कुछ होगा. In fact, V cross with B will be maximum cross product. And intuitively this branch is right now slicing against the field lines. बहुत सारे green color के field lines से imagine करो, there are many such field lines in space and ये side branch उनको slice करके ऊपर जा रहा है, ठीक है. So by that idea the flux is the EMF is maximum when you slice against the field lines. The other branch will have a velocity vertically down but again perpendicular to field lines. So this is one visualization for induced EMF and the flux concept. Okay, how is their behavior interrelated? ठीक है, तो ये आइडिया बहुत सारे किताब में मिलता है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बात कर ले, ठीक है. ओके, तो इन दिस केस द आर्म्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, सो यू गेट अ मैक्सिमम ईएमएफ. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड द ऑल्टरनेटिंग आइडिया, ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट में विल बी टॉकिंग अबाउट आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यूज.